हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर दैट इज टॉपिक नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट किया है। कौन सा पार्ट? द इंट्रोडक्शन पार्ट। इन दिस इंट्रोडक्शन पार्ट वी आर स्टार्टिंग द न्यू पॉइंट दैट इज और ऑलरेडी कंप्लीटेड C1 to C10। दिस जो टेबल था हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसमें हाउ टू इन सपोज जे स्ट्रक्चर में अगर 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है विथ single bond is nothing but the pentane. In structure which contain 5 carbon atom with double bond is nothing but the pentene, and structure which contain 5 carbon atom with triple bond is nothing but the pentyne. These are already we are completed. Now we are continue the same point, that is introduction point, and the new point is nothing but the table number C11 to C20. In this table we are studying how many carbon atoms are present, that is nothing but the 11, 12, 13, 14, 15 continuous to C20. तो then इसको अल्केन में क्या बोलते हैं, अल्कीन में क्या बोलते हैं, देन अल्काइन में क्या बोलते हैं। इसी तरह से हम लोगों को ये क्या करना है, कंप्लीशन करना है। ओके, तो फर्स्ट we are completed C1 to C10 chart. Now we are starting the new chart that is nothing but the C11 to C20. Okay, in this chart आप लोगों ने देखा होगा C11. What is mean by C11? C11 is nothing but the number of carbon atom present in the structure of given compound is 11. Having single bond is nothing but the alkane. If total number of carbon atom is 11, having single bond is nothing but the alkane. Total number of carbon atom is 11, having double bond is nothing but the alkene. And total number of carbon atom in the structure having triple bond is nothing but the alkyne. Mean what is mean by alkane? Alkene means these are the aliphatic saturated hydrocarbon containing carbon carbon single bond. Means जिस कंपाउंड में आप लोगों को सिंगल बॉन्ड दिखेगा, नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, these are the alkane. Alkene, these are the aliphatic unsaturated hydrocarbon containing carbon carbon double bond. Means जिस कंपाउंड में अगर हम लोगों को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कम से कम एक तो डबल बॉन्ड चाहिए, अगर उसमें दिखेगा स्ट्रक्चर में, इज नथिंग बट द अल्कीन. एंड सेम डेफिनेशन इन द अल्काइन इज नथिंग बट द दीज आर द एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. इसी तरह से हम लोगों को कंप्लीट करना है. और ये पहचान में कैसा है जगह C11 हैविंग 11 carbon atom with single bond is nothing but the alkane and is called as undecane. And what is meant by undecane? Undecane means decane. Okay, decane means 10, un means single. Decane means 10, un means single. That is 10 plus 1 is nothing but the 11. So total number of carbon atom having 11 having single bond in alkane is called as undecane. Then total number of carbon atom 12 having single bond is called as dodecane. Dodecane, decane means 10, do means 2, means 10 plus 2 C12 carbon atom. Then C13, C13 means total number of carbon atom 13 having each and every carbon atom having single bond is nothing but the tridecane in alkane. Then C14, total number of carbon atom is 14 having each and every carbon atom is single bond is nothing but the tetradecane. Then C15, total number of carbon atom 15 having single bond is called pentadecane. C16, total number of carbon atom having 16 having single bond is called hexadecane. Then total number of carbon atom 17 in each and every carbon atom having single bond is nothing but the heptadecane. And C18, total number of carbon atom 18 having single bond is nothing but the octadecane. C19, total number of carbon atom is 19, okay, having single bond is nothing but the nonadecane. And last one is nothing but the 20. This 20 is nothing but the icosane, because ANE having single bond. Means total number of carbon atom is 20 having each and every carbon atom shows single bond in their structure is nothing but the icosane. These are the very important in single bonded compound, total number carbon. If C1 is called as methane, C2 इथेन, ऐसे हम लोगों ने एक बार देख लिया. तो टोटल C1 to C20 तक आप लोगों को अल्केन के अगर
सब लोग समझ में आ सकते हैं, तो समझ में आ गया एक बार कि अल्केन में C12 C20 में अल्केन में उसे क्या कहते हैं। तो अल्कीन अल्काइन दीज आर नॉट डिफ्रेंशिएट कर मुझे इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो C1 में क्या, C1 इज नथिंग बट द मीथेन, देन C2 इथेन, C3 प्रोपेन, देन C4 ब्यूटेन, मींस 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नोनेन, 10 डेकेन। नाउ C11 अनडेकेन, अन मीन्स सिंगल, डेकेन मीन्स 10, डूडेकेन 12, 13 ट्राइडेकेन, 14 टेट्राडेकेन, 15 पेंटाडेकेन। व्हाट इज मीन बाय पेंटाडेकेन, पेंटा डेकेन मीन्स 10, पेंटा मीन्स 5, टोटल 15, 16 is nothing but the hexadecan, 17 heptadecan, 18 octadecan, 19 nonadecan, and last one that is 20 is called as the total number of carbon atom 20 having each and every carbon atom having single bond is called as icosane। इसी तरह से हम लोगों के एक बार दिमाग में बैठ गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक बार ए समझ में आ गया अल्केन का पॉइंट C1 to C20, देन 11 12 आपको बहुत इजी जाएगा, क्योंकि यही है, इसके अलावा कुछ अलग पार्ट हम लोगों को ना अलग स्टडी करना है ना कुछ नहीं स्टडी करना है। इतना एक बार आ गया आप लोगों को तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो 11 का भी ये बेस है, 12 का भी बेस है, प्लस सीटी नीट और जेई लेवल के सभी पॉइंट्स इसी के ऊपर डिपेंड्स है। सो हम लोगों को ये मालूम ही होना चाहिए। इसके बाद में C11 को अल्किन में क्या कहते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा है पेंटेन अगर बोल दिया अल्केन में तो उसका अल्किन में कन्वर्शन होगा पेंटीन, अल्काइन में कन्वर्शन होगा पेंटाइन, बिकॉज पेंटेन ANE रिप्लेस बाय ENE रिप्लेस बाय YNE, पेंटेन पेंटीन पेंटाइन। उसी तरह से हम लोगों को इस 11 का भी कन्वर्शन करना है, मींस हम लोगों को क्या करना है, इधर जो ANE लिखा हुआ है ये रिप्लेस बाय ENE इज नथिंग बट अल्किन, ANE रिप्लेस बाय YNE इज रिप्लेस बाय अल्काइन, मींस अनडेक दीज आर द सिमिलर। इसमें डूडेक सिमिलर पॉइंट रहेगा, ट्राइडेक सिमिलर रहेगा, लेकिन ये जो ANE है ये रिप्लेस हो जाएगा अल्किन में ENE और अल्काइन में YNE। सो अनडेकेन अनडिकिन अनडेकाइन, बिकॉज हैविंग। अब लोगों को अभी देख मैं इधर लिखता हूं, आप लोगों को समझ में जल्दी आ जाएगा। C11 मींस अनडेकेन with ANE single bond having double bond ENE. So total number of carbon atom 11 having double bond is called undecane. Total number of carbon atom okay having triple bond is nothing but the undecaine. ANE, ENE and YNE, these are the difference point. Okay, undec, endec is similar point, but ANE, ENE, YNE. ANE means single bond, ENE means double bond, YNE means triple bond. Means 11 carbon atom having single bond, 11 carbon atom having double bond, 11 carbon atom having क्या बोलेंगे triple bond. Okay, these are the very simple. Next is nothing but the dodecane. Total number of carbon atom 10 having single bond dodecane, having double bond dodecine ENE, having triple bond dodecaine. ओके, ENE की जगह हम लोगों को क्या लिखना है YNE, मींस हैविंग सिंगल बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 12, हैविंग सिंगल बॉन्ड ANE दैट इज डूडेकेन, हैविंग डबल बॉन्ड ENE दैट इज डूडेकिन, हैविंग ट्रिपल बॉन्ड डूडेकाइन। देन C13 में आप लोगों को क्या लिखना है, अभी ट्राइडेकेन मींस ट्राइडेक, ये तो कॉमन रह गया। अभी ANE की रिप्लेस की जगह ENE, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ 13 कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड। Then tridecaine means total number of 13 carbon atom having triple bond. वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर 1 है तो YNE, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड्स है उसमें प्रेजेंट तो डाई YNE, अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ट्राई YNE। इस आपको बाद में समझ में आ जाएगा, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन टेट्राडेकेन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 14 हैविंग सिंगल बॉन्ड, टेट्राडेकेन having double bond tetradecaine, having triple bond tetradecaine. Okay, next pentadecane. In pentadecane total number of carbon atom 15 having single bond pentadecane, having double bond pentadecane, then having triple bond penta
डेक YNE means total number of 15 carbon atom having double bond pentadecaene, total number of carbon atom 15 having triple bond pentadecaene. नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 16 कार्बन एटम, टोटल 16 मीन्स हैविंग सिंगल बॉन्ड हेक्साडेकेन, हैविंग डबल बॉन्ड हेक्साडेकेन मीन्स हेक्साडेकेने, हैविंग ट्रिपल बॉन्ड हेक्साडेकवाइन. ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हेप्टाडेकेन, हेप्टा मीन्स टोटल 17, हेप्टाडेकेन हैविंग टोटल नंबर ऑफ 17 कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड हेप्टाडेकेन, हैविंग डबल बॉन्ड हेप्टाडेकने डेकिन, देन हेप्टाडेकवाइन that is nothing but the heptadecaene, total number of carbon atom 17, double bond 17, triple bond. नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 18, total number of carbon atom is 18 having single bond octadecaene, having double bond octadecaene, okay, having triple bond octadecaine, octadecaine. Total number of 19 nonadecaene, that is nothing but the nonadecaene, then nonadecaine means having total number of 19 carbon atom, having single bond nonadecaene, having double bond nonadecaene, having triple bond nonadecaine. And last one icosane. In this icosane, icos Ane replaced by Ene and icos Ene replaced by Yne means total number of carbon atom 20, having single bond icosane, having double bond icosine and having triple bond icosine. These are the very important chart, that is C1 to C20 are very important according to CET level, JEE level, NEET level as well as state board level also. So this start आपको मालूम ही होना चाहिए. So C1 to C20 आप लोगों को कंपलसरी ध्यान में रखना ही है. Last point, we are continuous in the topic number 14, that is basic principles of organic chemistry, is nothing but the introduction part. And in this introduction part we are already completed C1 to C10 chart as well as C11 to C20 chart. Okay, now we are continuous the same point, that is introduction. The new point is nothing but the types of carbon atom. What is the mean by types of carbon atom? ओके, दिस कार्बन एटम आप लोगों को सबको मालूम है कार्बन एटम. दिस कार्बन एटम हैविंग 4 वैलेंसीज. वो वैलेंसीज भी कैसे कंप्लीट करने वो भी मैं आप भी सिखाने वाला हूं. दिस कार्बन एटम आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑल्सो. और हाइड्रोजन एटम भी आप लोगों को पता होगा. तो वो कार्बन एटम के कौन कौन से टाइप्स है एज वेल एज हाइड्रोजन एटम के कौन कौन से टाइप है ये आपको मालूम होना चाहिए. इसलिए फर्स्ट हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन पार्ट में ले लिया है. व्हाट इज टाइप्स ऑफ कार्बन एटम? द कार्बन एटम हैविंग 4 टाइप्स. ओके, व्हिच वन? द फर्स्ट वन इज नथिंग बट द प्राइमरी कार्बन एटम. ओके, सेकेंड वन इज नथिंग बट द सेकेंडरी कार्बन एटम. Third one is nothing but the tertiary carbon atom and fourth one is nothing but the quaternary carbon atom. आता what is mean by primary carbon atom? What is mean by secondary carbon atom? ओके, तो वो कंप्लीट करने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा. उस एग्जांपल से आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा व्हाट इज प्राइमरी कार्बन एटम, व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम. दीज आर द कार्बन एटम्स हैविंग 4 टाइप्स. फर्स्ट इज नथिंग बट द प्राइमरी कार्बन एटम. ओके, फर्स्ट मैं आप लोगों को डेफिनेशन उसका बोल देता हूं. डेफिनेशन क्या है? दीज आर द कार्बन एटम हैविंग attached to another only one carbon atom or none other carbon atom is called as primary carbon atom. तो what is the mean by definition? बघा, फर्स्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूं. एग्जांपल में हम लोगों को देखना है CH3 बॉन्ड CH3. ओके, CH3 बॉन्ड CH3. इस CH3 बॉन्ड CH3 में मैंने 2 कार्बन एटम ले लिए. फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम. बस इसमें प्राइमरी कार्बन एटम कितने, सेकेंडरी कार्बन एटम कितने,
टर्शियरी कार्बन एटम कितने हैं, क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो पहले डेफिनेशन क्या बोलते हैं प्राइमरी कार्बन एटम की, तो फर्स्ट इज नथिंग दीज आर द कार्बन एटम इज अटैच्ड टू अनदर ओनली वन कार्बन एटम is nothing but the primary carbon atom और none other carbon atom is also called as primary carbon atom। अभी इसमें देखा जाए तो this carbon atom attached to only one that carbon atom is nothing but the primary carbon atom। It is represented by already आपको पता है 1 2 0 3 और 4 इससे represent करना है। तो these are the carbon atom attached to only one carbon atom so is called primary carbon atom। So this one also because these carbon atom attached to only one that carbon atom so this one is also primary carbon atom because definition क्या बोलती है कि primary carbon that is the carbon atom which attach another only one carbon atom so primary this carbon atom attached to only one so primary। और एक definition बोलते हैं कि for example मैंने इधर लिख दिया है CH4 अभी इसमें भी कार्बन एटम है this carbon atom do not attach any other carbon atom so these are primary secondary tertiary और quaternary। तो definition में और एक point मैंने बोल दिया था these are the carbon atom which attach another only one carbon atom or none other carbon atom is called primary। म्हणजे ये कार्बन एटम किसी को भी अटैच नहीं है इसलिए ये भी प्राइमरी कार्बन एटम मीन्स समझ में आ गया प्राइमरी कार्बन एटम दीज आर द 4 टाइप्स उसमें से फर्स्ट है प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम मींस दैट कार्बन एटम व्हिच अटैच ओनली वन और नन अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन एटम। ओके सेकेंड पॉइंट में देखा जाए तो सेकेंडरी कार्बन एटम। व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी कार्बन एटम दीज आर द कार्बन एटम दैट अटैच टू अनदर 2 अदर कार्बन एटम। लास्ट डेफिनेशन में क्या था कि ओनली वन कार्बन एटम। अभी सेकेंड डेफिनेशन में क्या है 2 अदर कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 इज नथिंग बट द प्रोपेन। इन दिस प्रोपेन अगर देखा जाए तो दिस कार्बन एटम अटैच टू दैट कार्बन एटम सो इट इज द ओनली वन कार्बन एटम मीन्स ए वाला जो कार्बन एटम है ए वाला ये कार्बन एटम के ही अटैच है दैट इज ओनली वन दैट इज नथिंग बट दीज आर द प्राइमरी कार्बन एटम। सेकेंड ए वाला जो कार्बन एटम है लास्ट वाला इज अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम इज आल्सो नथिंग बट द प्राइमरी कार्बन एटम। बट जो सेंटर में कार्बन एटम है दिस कार्बन एटम अटैच टू दैट कार्बन एटम एज वेल एज दैट कार्बन मीन्स इसको भी वो अटैच है और इसको भी अटैच है यानी कि 2 अदर कार्बन एटम मीन्स दिस कार्बन एटम attached to another 2 other carbon atom so is called as secondary carbon atom। समझ में आ गया मीन्स प्राइमरी कार्बन एटम मीन्स दैट कार्बन एटम which attached to another only one carbon atom so for primary that carbon attached to only one carbon that is primary but this carbon atom attached to another 2 other carbon atom so it is nothing but the secondary carbon atom। okay next point is nothing but the tertiary carbon atom। what is mean by tertiary carbon atom? Tertiary carbon atom means that carbon attached to another 3 other carbon atom। Tertiary 3 means that carbon atom attached to another 3 other carbon atom। For example मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। ए वाला एक एग्जांपल है इसमें देखा जाए तो इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल या फिर आइसोब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। आइसोब्यूटाइल है तो आपको ए अगर देखा जाए तो इसमें सबकी मैंने वैलेंसी कंप्लीट कर दी है। इसमें ए वाला कार्बन एटम कौन सा है ए वाला कार्बन एटम कौन सा है ए वाला कौन सा है ए वाला कौन सा है टोटल 4 कार्बन एटम पास है उसके टाइप से प्राइमरी है सेकेंडरी है टर्शियरी है क्वाटरनरी। तो इसमें ए वाला कौन सा है तो इसमें अगर देखा जाए दिस कार्बन एटम अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम सो इज नथिंग बट द प्राइमरी। दिस कार्बन एटम अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम ओके इसको ही अटैच है तो इसको ऑल्सो इज नथिंग बट द प्राइमरी। This carbon atom attached to only one that carbon atom is also primary but this carbon atom सेंटर में जो कार्बन एटम है ए वाला कार्बन एटम किस किस को अटैच है देखो फर्स्ट इसको अटैच है सेकेंड इसको अटैच है थर्ड इसको अटैच है मीन्स दिस कार्बन एटम अटैच टू द फर्स्ट वन सेकेंड वन थर्ड टोटल 3 अदर कार्बन एटम सो इज कॉल्ड एज टर्शियरी कार्बन एटम। ओके प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शियरी कार्बन एंड लास्ट वन quaternary carbon atom। what is mean by quaternary carbon atom? These are the carbon atom attached to another
4 other carbon atom is called as quaternary carbon atom. अभी मैं इधर ही quaternary carbon atom का एक एग्जांपल आपको लिख के देता हूं. इधर मैंने CH3 कर दिया. ओके इस CH3 में अगर देखा जाए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ए वाला भी कार्बन एटम अटैच टू ओनली वन, सो ये भी प्राइमरी. बट सेंटर में जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम अटैच टू फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड अदर फोर वन. जो टोटल जो उसकी वैलेंसी है 4 वैलेंसी, टोटल 4 वैलेंसी को 4 कार्बन एटम अटैच है. सो इज नथिंग बट द क्वाटर्नरी कार्बन एटम. मीन्स व्हाट इज मीन बाय कार्बन एटम or what is the types of carbon atom? The carbon atom having 4 types, that is primary, secondary, tertiary and quaternary. This primary carbon atom means that is the carbon atom attached to another only one or none other carbon atom. Secondary means that is the carbon atom attached to another 2 other carbon atom. Tertiary carbon atom means that is the carbon atom attached to another 3 other carbon atom. And quaternary carbon atom means that is the carbon atom attached to another 4 other carbon atoms. So it is called as primary, second and tertiary carbon atom. But in case of types of carbon atom की जगह हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम के आप लोगों को टाइप्स देखने हैं तो उसके टाइप्स कितने हो जाएंगे? 3 टाइप्स. 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. विच वन? प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, ओके, secondary hydrogen atom and tertiary hydrogen atom. Mean primary, second and tertiary hydrogen means what is the mean by primary hydrogen atom? That hydrogen atom, these are the hydrogen atom attached to primary carbon atom is called primary hydrogen atom. What is the mean by secondary hydrogen atom? These are the hydrogen atom attached to secondary carbon atom. And tertiary hydrogen atom means these are the hydrogen atom attached to tertiary कार्बन एटम इज कॉल्ड टर्शियरी हाइड्रोजन. मीन्स जो हाइड्रोजन एटम किस कार्बन एटम को अटैच है उसके ऊपर उसका क्लासिफिकेशन है. फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी वन हाइड्रोजन एटम अटैच टू द प्राइमरी कार्बन एटम, दीज आर प्राइमरी हाइड्रोजन. अगर वन हाइड्रोजन एटम अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम. और अगर वन हाइड्रोजन एटम अटैच टू टर्शियरी कार्बन एटम, टर्शियरी हाइड्रोजन एटम. इसमें देखा जाए तो हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर. तो इस प्राइमरी कार्बन एटम को 3 हाइड्रोजन अटैच है. इस प्राइमरी कार्बन एटम को पे 3 हाइड्रोजन एटम है. टोटल 3 + 3 टोटल 6 मींस टोटल 6 प्राइमरी हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर. ओके अगर इसमें देखा जाए, इसमें देखिए फिर CH4 में हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट. ऑन प्राइमरी कार्बन एटम अपने पास है तो उसके कितने हाइड्रोजन अटैच है? 4. तो इसमें 4 प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट. इस केस में हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट? दीज आर द हाइड्रोजन एटम अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम, दैट इज 3. दीज आर द हाइड्रोजन एटम अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम, दैट इज 3. टोटल 6 प्राइमरी हाइड्रोजन एटम. एंड दीज आर द हाइड्रोजन एटम अटैच टू सेकेंडरी कार्बन एटम, सो इज कॉल्ड एज H2 सेकेंडरी कार्बन एटम. दैट इज 2 कितने हैं? 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है. इसी तरह से हम लोगों को ये कंप्लीट करना है. मींस व्हाट इज कार्बन एटम, हाउ दे आर क्लासिफाइड, प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी, क्वाटर्नरी. दैट इज व्हाट इज हाइड्रोजन एटम, हाउ दे आर क्लासिफाइड, प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी. प्राइमरी हाइड्रोजन एटम दैट अटैच टू द प्राइमरी कार्बन एटम. These are the hydrogen atom attached to the secondary carbon atom, secondary hydrogen atom. And these are the hydrogen atom attached to the tertiary carbon atom, tertiary hydrogen atom. Okay? According to state board level ये अपना complete हो गया. अगर क्वेश्चन इस तरह से आ गया according to CET level, NEET level and JEE level, how many primary, second and tertiary and quaternary carbon atoms and hydrogen atoms are present in following compound. मीन्स एक एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा, इसमें हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, आप लोगों को बताना है. तो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया. अभी इस एग्जाम्पल से हम लोगों को ये सब कंप्लीशन करना है. ये सब कंप्लीशन करते समय आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो है ये पहला कंप्लीट करना है, बिकॉज दीज आर नथिंग बट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. और इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में ये जो दिखता है 1 2 3 4 5 6 these are the carbon atoms. ओके these are the carbon atom. पहले हम लोगों को ये कार्बन एटम लिखने. फर्स्ट अभी इसमें एक है तो 1 कार्बन एटम,
इसमें एक है तो सेकेंड कार्बन एटम, इसमें एक है तो थर्ड कार्बन एटम, इधर एक है 4 कार्बन एटम, इधर एक है 5 कार्बन एटम। मीन्स टोटल देखा जाए 1 2 3 4 5 6, अभी मैंने 5 लिखा है तो और एक है 6 कार्बन एटम। हो गए। अभी क्या होगा, इस कार्बन एटम को और 2 कार्बन एटम अटैच 1 2, तो ए बी किस तरह है 1 2 3, लेफ्ट साइड से थर्ड नंबर 1 2 3 एंड के 1 2 3। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर कार्बन एटम अपने पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर कार्बन के मैंने चेन का एक स्केलेटन बना दिया। अभी इस स्केलेटन से आप लोगों को इजीली पता लगेगा कि हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम एंड टर्शियरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। ओके, ये जो है, ये कौन बोलेगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये है प्राइमरी कार्बन एटम बिकॉज दिस कार्बन एटम अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम इज नथिंग बट द प्राइमरी कार्बन एटम। अभी इसको देखें, दिस कार्बन एटम अटैच टू अनदर 2 अदर कार्बन एटम इज नथिंग बट द सेकेंडरी कार्बन एटम। This carbon atom attached to another 2 other carbon atom, that is secondary carbon atom. This carbon atom attached to another 4, 1 2 3 4 other carbon atom, so it is nothing but the quaternary carbon atom. This carbon atom attached to another 2, 1 2, so these are the secondary one, and this carbon atom attached to another only one carbon atom, that is the primary one. अब ये 2 रह गए, दिस कार्बन एटम अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम, सो इज आल्सो प्राइमरी, एंड दिस कार्बन एटम अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम, दैट इज आल्सो प्राइमरी। अभी आपके पास प्राइमरी कार्बन एटम कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम कितने हैं, टर्शियरी है क्या नहीं आप लोगों को पता लगेगा, और क्वाटरनरी कार्बन एटम कितने। तो हम लोगों को इधर लिखना है प्राइमरी कार्बन एटम। देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 प्राइमरी कार्बन एटम अपने पास है। How many secondary carbon atoms are present? 1 2 3 secondary carbon atoms are present. How many tertiary carbon atoms are present? There is no tertiary carbon atom because ऐसा एक भी कार्बन एटम इधर नहीं है जो अटैच टू अनदर 3 अदर कार्बन एटम, सो टर्शियरी कार्बन एटम इज 0 लिखना है, इधर 0 लिखना है। ओके, और लास्ट में क्वाटरनरी कार्बन एटम, क्वाटरनरी ओनली वन, दैट कार्बन एटम अटैच टू अनदर 4 अदर कार्बन एटम, ओनली वन। देखिए अभी इसका टोटल कर दीजिए 4 3 7 8, टोटल 8। अभी 8 कार्बन एटम इधर आंसर है, टोटल 8 कार्बन एटम अपने पास है, सो दिस आंसर इज द करेक्ट आंसर। मींस दिस कंपाउंड शोज प्राइमरी कार्बन एटम 4, सेकेंडरी कार्बन एटम 3, टर्शियरी 0 एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम इज 1। लास्ट वन, इस पॉइंट में अगर देखा जाए तो हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, आपके पास प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कितने हैं, प्राइमरी कार्बन एटम इतने हैं, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए अपने पास ये देखिए एक ऑलरेडी वैलेंस है तो टोटल हाइड्रोजन 3 लगेंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक ऑलरेडी है तो इसकी कंप्लीट करने के लिए 3 लगेंगे। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने ऑलरेडी है, टोटल वैलेंसी कार्बन की 4 रहती है, एक ऑलरेडी है तो इसको 3 लगेगा। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए टोटल 4 कार्बन एटम की वैलेंसी रहती है, ऑलरेडी 1 है तो टोटल वैलेंसी कंप्लीट करेंगे 3 लगे। अभी जितने मैंने लिखे हैं सब प्राइमरी हाइड्रोजन एटम है क्योंकि वो अटैच टू द प्राइमरी कार्बन एटम, तो 3 3 6 3 9 12 मींस टोटल 12 कार्बन एटम और 12 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कितने हो गए 12। अभी सेकेंडरी देखते हैं, सेकेंडरी की इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के ऑलरेडी 2 वैलेंसी इसके पास है तो हाइड्रोजन एटम, ऑलरेडी इसके पास 2 वैलेंस है तो 2 से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं हाइड्रोजन, दिस फिर CH2 हो जाएगा बिकॉज 2 वैलेंसी आर ऑलरेडी प्रेजेंट, टोटल 4 है तो ऑलरेडी 2 हो गए तो टोटल कितना हो गया देखा 6। अभी लास्ट में ए वाला एक कार्बन एटम है टर्शियरी, तो टर्शियरी इसमें है क्या नहीं, क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम नहीं रहते बिकॉज दिस कार्बन एटम अटैच टू अनदर 4 अदर, इसके पास हाइड्रोजन एटम नहीं है, टर्शियरी नहीं है तो ये हो गया 0। टोटल कितना होगा 18। अपने पास 18 हाइड्रोजन एटम है कि नहीं देखना है, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18। ओके, अगर देखा जाए फिर से मैं बोल देता हूं 3 2 5 6 7 8 9 10 11 13 और 14 15 16, टोटल अपने पास अगर देखा जाए तो इतने 18 कार्बन एटम अपने पास है। ओके, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शियरी कार्बन एटम। आप लोगों के पास जो भी रहेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 12 और 6 18 ओके, समझ में आ जाएगा।
ये अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल हाउ मेनी classification of primary carbon atom as well as hydrogen atom according to state board level, as well as CET NEET and J level how to distinguish between primary secondary tertiary carbon atom and hydrogen atom the given compound. ये भी एग्जाम को CET NEET and J level को पूछा जा सकता है. ओके, थैंक यू वेरी मच.